حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میں میونسپل الیکشن کا شیڈول ہوا جاری۔ 7 میونسپل کارپوریشنوں اور 16 بلدیات میں 11 فروری کو ووٹنگ، 13 فروری کو ووٹوں کی گنتی اور اسی دن نتائج کا اعلان۔ نامپلی میں لگی شدید آتش زدگی کے دوران فائر فائٹنگ کے لیے جدید روبوٹ کا مؤثر استعمال، وائرلیس کنٹرول اور لائیو ویڈیو کے ذریعے ریسکیو ٹیموں کو فوری معلومات فراہم۔ حیدرآباد کی مچھلی والی عمارت دنیا کے عجیب و غریب عمارتوں میں شامل، میموری آرکیٹیکچر کے عالمی مثال بنی فش بلڈنگ۔ دور سے دیکھو تو مچھلی، قریب سے دیکھو تو انجینئرنگ کا کمال۔ فون ٹیپنگ کیس میں SIT نے BRS جنرل سیکرٹری سنتوش کمار کو جاری کی نوٹس۔ BRS کا سیاسی انتخاب کا الزام، کویتا نے کہا سنتوش راؤ ہی ریونت ریڈی کا مخبر۔ نامپلی MLA ماجد حسین کا شاہی مسجد باغ عامہ میں رمضان انتظامات کا جائزہ۔ مسجد کے اطراف شیڈ، وائٹ واشنگ و مینٹیننس کا کام رمضان سے قبل ہوں گے مکمل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں بلدی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ریاست کی 7 میونسپل کارپوریشنوں اور 116 بلدیات میں انتخابات منعقد ہوں گے۔ ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمودینی نے اضلاع کے کلکٹر، SPs اور پولیس کمشنرز کے ساتھ جائزہ اجلاس کے بعد شیڈول کا اعلان کیا۔ تاہم GHMC اسی انتخابی عمل میں شامل نہیں ہوگی۔ تلنگانہ میں بلدی انتخابات کے شیڈول کے اجرائی کے ساتھ ہی پورے تلنگانہ بشمول گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے علاقوں میں ضابط اخلاق فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے۔ انتخابی شیڈول کے مطابق 28 تاریخ سے نامزدگیاں داخل کی جائیں گی، جبکہ 31 تاریخ آخری دن ہوگا۔ پولنگ 11 فروری کو منعقد کی جائے گی اور 13 فروری کو ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ان انتخابات میں 53 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے، جبکہ الیکشن کمیشن نے سرکاری وسائل کے غلط استعمال پر سخت پابندی، انتخابی ضابطوں پر کڑی نگرانی اور کسی بھی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی وارننگ دیتے ہوئے شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نامپلی میں واقع ایک فرنیچر کے شو روم میں اور گودام میں بھڑکنے والی شدید آگ پر قابو پانے اور بچاؤ کارروائیوں کے دوران ایک جدید فائر فائٹنگ روبوٹ کا مؤثر استعمال کیا گیا۔ شدید شعلوں اور گھنے دھوئیں کے باعث جہاں فائر فائٹرز کے لیے متاثرہ عمارت میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، وہیں یہ روبوٹ ایسی خطرناک صورتحال میں اندر داخل ہو کر آگ بجھانے اور پھنسے ہوئے افراد کی مدد میں نہایت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ وائرلیس نظام کے تحت باہر سے کنٹرول ہونے والا یہ روبوٹ ویڈیو کیمرے کے ذریعے اندرونی صورتحال کی براہ راست فوٹیج فراہم کرتا ہے، جس سے ریسکیو ٹیموں کو بروقت فیصلہ لینے میں مدد ملتی ہے۔ اس قسم کے روبوٹس عموماً آئل ریفائنریز اور کیمیکل پلانٹس جیسی خطرناک صنعتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں انتہائی درجہ حرارت، زہریلی گیسز اور دھماکوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ روبوٹ میں واٹر اسپرے، اسموک ایکسٹریکشن ڈیوائسز اور جدید سینسرز نصب ہوتے ہیں، جو نہ صرف آگ بجھانے بلکہ رکاوٹوں اور دھوئیں کو بھی مؤثر طور پر دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ حیدرآباد کی نیشنل فشرز ڈیولپمنٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر عمارت نے دنیا بھر میں اپنی منفرد اور حیرت انگیز شکل کی وجہ سے خاص مقام بنایا ہے اور اسے حال ہی میں دنیا کی عجیب و غریب عمارتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ 2012 میں مکمل ہونے والی یہ 4 منزلہ عمارت مکمل طور پر ایک 2 ویکل مچھلی کی مانند ڈیزائن کی گئی ہے، جس میں چمکدار دھاتی بیرونی بڑے پرزوں اور 2 بڑی سرکل کھڑکیوں کی وجہ سے دور سے یہ مچھلی کی آنکھوں جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرز تعمیر کو میموری آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے، جس میں عمارت کی شکل اس کے اندر ہونے والے کام کی عکاسی کرتی ہے۔ رات کے وقت نیلی روشنی میں روشن ہونے پر یہ عمارت ایسا منظر پیش کرتی ہے جیسے شہر کے بیچ میں کوئی دیویکل مچھلی نیلے پانی میں
तैर रही हो। तामीर के वक्त इस डिजाइन को मिले जुले रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता था, मगर आज ये हैदराबाद का एक लाजमी देखने वाला मुकाम बन चुकी है। सयाह न सिर्फ सरकारी काम के लिए यहाँ आते हैं, बल्कि ये मुनफरिद ढांचे के साथ तस्वीरें लेने और फनकारी की तारीफ करने के लिए भी दूर दराज से आते हैं। ये इमारत साबित करती है कि सरकारी दफातर भी फनकाराना और मुतासिर कुन हो सकते हैं और जदीद शहरी तरक्की में नए अंदाज को फरोग दे सकते हैं। दुनिया की दिगर अजीब व गरीब इमारतों में अमेरिका की बास्केट बिल्डिंग जो टोकरी जैसी दिखाई देती हैं, पोलैंड का क्रोकड हाउस और फ्लोरिडा का गटार होटल शामिल हैं। हैदराबाद की मछली नुमा इमारत न सिर्फ तख्लीकी सलाहियत का सबूत है, बल्कि ये जदीद शहरी डिज़ाइन के नए ज़ावियों को भी नुमाया करती है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अमेरिका के शहर कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मारूफ कैनेडियन स्कूल में अपनी एग्जीक्यूटिव तालीम का आगाज कर दिया है। लीडरशिप इन दी 21st सेंचुरी के उन्वान से इस प्रोग्राम का इफ्तिताही सेशन अख्तियार और क़ियादत का तज्ज़िया के मौजू पर हुआ, जबकि पीर के रोज़ सुबह 7 बजे से बाकायदा क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिनमें बड़ी क्लासेस, केस स्टडी, मुख्तलिफ सेशंस और मुशावरती ग्रुप वर्क शामिल हैं, जो शाम तकरीबन 6 बजे तक जारी रहेंगी। शदीद सर्द मौसम और बर्फानी तूफ़ानी फरान के बावजूद, जिसके बायस बोस्टन के अतराफ में 24 इंच से ज़ायद बर्फबारी और दर्ज हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। वज़ीर आला ने प्रोग्राम की ओरिएंटेशन और हॉट तारुफ के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया। तेलंगाना हुकूमत ने माजूर अफराद को फलाह व बहबूद के लिए गुज़िश्ता 2 साल में 100 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया है, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मोदिरा असेंबली हल्के में माजूर अफराद को ट्राइकल्स तकसीम करने के मौके पर बताया। उन्होंने कहा कि ये वो इक़दामात हैं जो पिछली हुकूमत 10 साल में नहीं कर सकती, जबकि मौजूदा इंदिरा अवामी हुकूमत न सिर्फ ज़रूरी स्कीमें फराहम कर रही है, बल्कि माजूर तलबा को आईपैड, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स तक फराहम करने के इनकी तालीम में भी माविनत कर रही है। भट्टी ने माशरे पर जोर दिया कि माजूर अफराद की भरपूर मदद और मौके फराहम करे ताकि वो हर मैदान में नुमाया तरक्की कर सके, और कहा कि हुकूमत इन्हें मुश्किलात से बचने और बचाने और मसावी मौक़े देने के अपने विज़न के साथ आगे बढ़ रही है। इस तरह के इक़दामात में दीगर सरकारी स्कीमों के तहत माजूर जोड़ों को शादी के लिए 1 लाख रुपये तक का इनाम भी शामिल किया गया है, ताकि मसावी हुकूक और विखार को फ़रोग़ दिया जा सके। तेलंगाना के मेडारम में समक्का सारलम्मा यात्रा से कबल एक नादिर और दिलकश मंजर देखने को मिला है, जब न्यूजीलैंड से आए मारवी कबायली नुमाइंदों ने अपनी मशहूर हॉका रक्स पेश करके अकीदतमंदों और ज़ायरीन को मसहूर कर दिया। पंचायत राज वज़ीर सीतका की क़यादत में होने वाला ये दौरा हिंद न्यूजीलैंड सकाफती प्रोग्राम के तहत एक मुनफरिद बैनुल-अक़वामी क़बायली तबादला साबित हुआ, जहां मुकामी रवायत और आलमी सकाफत का हसीन संगम नजर आया। इस मौके पर वज़ीर सीतका ने भी हॉका ग्रुप के साथ रक़्स में शिरकत की और मेहमानों का पुरतपा खैर मक़दम किया, जिससे मेडारम यात्रा को एक बैनुल-अक़वामी कशिश और सकाफती हम आहंगी का पैगाम मिला। ये सकाफती तबादला महज एक रक़्सी मुज़ाहरा पेश नहीं था, बल्कि क़बायली शनाख्त, रूहानी रवायत और आलमी हम आहंगी का ताकतवर पैगाम भी था। मर्री क़बाइल का हॉका रक़्स जुर्रत, इत्तेहाद और एहतराम की अलामत समझा जाता है, जिसे मेडारम में समक्का सारलम्मा यात्रा की रूहानी फ़िज़ा के साथ जोड़कर पेश किया गया। फोन टैपिंग केस में तफ्तीश ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, जहां तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने BRS के जनरल सेक्रेटरी और साबिक रुकने पार्लियामेंट जय संतोष कुमार राव को नोटिस जारी करते हुए आज मंगल को जुबली हिल्स ACP दफ्तर में पेश होने की हिदायत दी थी।
इससे कबल इस मामले में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव और सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव से भी कई घंटों तक पूछताछ की चुकी है, जिसके बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी होता दिखाई दे रहा है। फोन टैपिंग केस में इल्जाम है कि बीआरएस हुकूमत के दौर में 600 से ज्यादा अफराद, जिनमें अपोजिशन लीडर, जजेस, सहाफ़ी, अदाकार और दीगर शामिल हैं, कि फ़ोन कॉल्स की निगरानी की गई और 1 लाख से ज्यादा कॉल्स टाइप हुए। नोटिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए संतोष कुमार राव ने कानून का एहतराम करते हुए तफ्तीश में ताउन की यकीन दहानी करवाई, जबकि केटीआर और हरीश राव ने इस कार्रवाई को सियासी इंतकाम और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार देते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की है, जिसके बायस सियासी हलकों में इस केस को आइंदा दिनों में मजीद अहम इंकशाफात से जोड़ा जा रहा है। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने निजामाबाद में गांजा माफिया के हमले में शदीद जख्मी एक्साइज कांस्टेबल सौम्या की हैदराबाद की निम्स हॉस्पिटल में इयादत करते हुए ड्रग्स और गांजा माफिया के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर गांजा माफिया एक एक्साइज कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने की हिम्मत कर रहा है तो ये हुकूमत की नाकामी और खौफ के खात्मे का सबूत है, क्योंकि आज देहातों हता के स्कूलों तक गांजा और ड्रग्स पहुंच चुके हैं, जिससे बच्चे, खवातीन और पूरा समाज तबाही का शिकार हो रहा है। कविता ने मुतालबा किया कि एक्साइज और फास्ट अमले को हथियार फराहम किए जाएं ताकि माफिया में खौफ पैदा हो और मौसर कार्रवाई मुमकिन हो सके। वहीं इस मौके पर कविता ने संतोष राव को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मकबर करार देते हुए इल्जाम आयद किया कि वही शख्स केसीआर की जाती मालूमात तक रेवंत रेड्डी को पहुंचाता रहा है और इसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हरीश राव और केटीआर की जानिब से इसकी हिमायत को कविता ने नाकाबिले फहूम करार दिया। कविता ने कहा कि अगर पुलिस सियासी दबाव से आज़ाद होकर ईमानदारी से काम करे तो संतोष राव को सजा जरूर मिलेगी। पुलिस से अपील की गई कि वो सियासी दबाव को बलाए ताख रखकर अपना फराइज अंजाम दे। बीआरएस पार्टी అదే విధంగా बीआरएस పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు ఉద్యమ నాయకులు ఉద్యమకారులకు దూరమైనరంటే, పేద ప్రజలకు దూరమైనరంటే, అమరవీరుల కుటుంబాలకు దూరమైనరంటే, పెద్ద పెద్ద నాయకులు గద్దర్ గారు లాంటి వాళ్ళు గేట్ బయట ఉండే పరిస్థితి వచ్చిందంటే, ఈటల రాజేందర్ గారు లాంటి వాళ్ళు పార్టీ వీడే పరిస్థితి వచ్చిందంటే, ఈ అన్ని దుర్మార్గాలకు కూడా సెంటర్ పాయింట్ మొదటి దయ్యం ఈ సంతోష్ రావు అనేటటువంటి వ్యక్తి. మరి ఆ సంతోష్ రావు గారిని సిట్ ఇప్పుడు పిలిచిందని చెప్తూ ఉన్నారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో. కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఈ గుంపు మేస్త్రి గారు, ఆయనకు ఉండేటటువంటి ప్రధాన గూఢాచారి కూడా ఈ సంతోష్ రావే. ఫామ్ హౌస్లో కేసీఆర్ గారు సగం ఇడ్లీ తిన్నారా, ఫుల్ ఇడ్లీ తిన్నారా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ గుంపు మేస్త్రికి ఇచ్చేదే ఈయన. మరి గుంపు మేస్త్రి గారి ఆయన గూఢాచారిని శిక్ష వేస్తాడా లేదా నాకు తెలియదు, నాకైతే నమ్మకం లేదు. సిట్టు పిలవడం వరకు బాగానే ఉంది, తదుపరి చర్యలు ఎట్లుంటాయనేటటువంటి అంశాన్ని చూడాలి. అదేవిధంగా మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులు కూడా గమనించుకోవాలి. ఇటువంటి దుర్మార్గుడికి హరీష్ రావు గారు, కేటీఆర్ గారు ట్వీట్స్ చేపెట్టి వత్తాసు పలకడం ఎందుకో అర్థమైతలేదు నాకు. మొత్తం పార్టీలో అనేక మంది నాయకులకు కన్నీళ్లు తెప్పించి రక్త కన్నీరు పెట్టించినటువంటి దుర్మార్గుడు, మొదటి దయ్యం, నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నటువంటి దయ్యం ఈ వ్యక్తి. మరి ఈ వ్యక్తి ఇవాళ వచ్చిందంటే చట్టం కరెక్ట్గా తన పని చేస్తే శిక్ష ఖచ్చితంగా పడుతుంది. కానీ గుంపు మేస్త్రి గారు ఈ గూఢాచారిని కాపాడుకుంటాడని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. మరి అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పక్కడబందీగా మీ పని మీరు రాజకీయాలకు అతీతంగా చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తాం. మీరు టానిక్ విషయంలో కానీ గతంలో ఆయన మీద వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణల పైన కూడా ముఖ్యమంత్రి చర్యలు తీసుకోలేకపోయిండు, ఇంటర్నల్ ములాఖత్ అయిపోయిందని మీరు గతంలో ఆరోపించారు, ఇంత చెప్తా ఉన్నారు. మరి కేసీఆర్కి తెలియదా? కేసీఆర్ పక్కనే ఉంటున్నారు కదా సంతోష్ రావు గారు. నేనేమంటున్నా అంటే ఒక్కొక్కసారి మన నీడను కూడా మనము గుర్తుపుంచలేనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మన కళ్ళను కప్పేసేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యమకారులకు దూరమయ్యి అలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయి ఆగమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. మరి ఉద్యమకారులకు ఉద్యమ నేతను దూరం చేసిన పాపం మాత్రం ఈ దయ్యాన్ని వదిలిపెట్టదని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, నేను గుంపు మేస్త్రి మీద నాకు నమ్మకం లేదు. గుంపు మేస్త్రి గారి గూఢచారి ఆయనను కాపాడుకుంటాడనేటటువంటి ఒక భయం అయితే నాకుంది. అందుకే నేను డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అపీల్ చేస్తూ ఉన్నాను, పక్కడబందీగా వెనకాల ఏముందో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి తీయండి. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. గతంలో మీ ఫోన్లు, మీ కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ అయినటువంటి అనుమానాలు మీరు వ్యక్తం చేశారు. మీకు కూడా సిట్ నోటీసులు ఇస్తుంది అనుకోవచ్చా? చూద్దాం ఏమవుతుందో, నాకైతే తెలియదు. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ.
हैदराबाद में बीआरएस पार्टी ने एबीएन आंध्रा ज्योति के एंकर वेंकटा कृष्णा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर इल्जाम है कि उन्होंने 23 जनवरी को एक मुबाहिसे के दौरान पार्टी एमएलए टी रविंदर राव को गुस्ताखाना और तखीर आमेज रवैया इख्तियार करते हुए जलील किया। बीआरएस के एमएलसीज की क़यादत अपोजिशन लीडर वी मधुसूदनाचारी ने की और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जी सिकंदर राव से मुलाकात करके एंकर के रवैये की मजम्मत की और कार्रवाई का मुतालबा किया। रविंदर राव ने बताया कि मुबाहिसे में इनके सवाल झूठी खबरों की नशरियात के बारे में थे, किसी खास चैनल या फर्द के खिलाफ नहीं, मगर एंकर ने गुस्से में आकर इन्हें मुबाहिसे से निकाल दिया। इस मौके पर बीआरएस क़यादत खास तौर पर के चंद्रशेखर राव और केटी रामाराव ने एंकर की गुस्ताखाना जबान की मजम्मत की और एबीएन आंध्रा ज्योति का बायकॉट किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन ने तहकीकात और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई, जबकि मधुसूदनाचारी ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक एमएलसी तक महदूद नहीं बल्कि काउंसिल के अराकीन के वक़ार और एहतराम से मुताल्लिक़ है और अपील की कि आइंदा ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। मकर संक्रांति गुजरने के 10 दिन बाद भी ममनुआ चाइनीज मांझा हैदराबाद में जान ले रहा है। हैदराबाद के कुकटपल्ली में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां ममनुआ चाइनीज मांझा एक 5 साला मासूम बच्ची की जान ले लिया। निशाविका आदित्य अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रही थी कि नेशनल हाईवे पर अचानक तेज धार मांझा इसकी गर्दन में उलझ गया। चीख व पुकार सुनकर वालिद ने गाड़ी रोकी, मगर गहरा जख्म और शदीद खून बहा और जानलेवा साबित हुआ और हॉस्पिटल में बच्ची दम तोड़ गई। आंध्र प्रदेश के जिले कोनासीमा से ताल्लुक रखने वाला ये खानदान हाल ही में हैदराबाद मुंतकिल हुआ था और एक खुशगवार दिन लम्हों में क़यामत बन गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है कि मसरूफ सड़क पर ममनुआ मांझा कैसे मौजूद था, जबकि शहर में चाइनीज मांझे के खिलाफ गम गुस्सा फिर भड़क उठा है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनान ने इसे हवा में लटकती तेज धार तलवार करार देते हुए सख्त इंतबाह दिया कि नायलॉन मांझा ना बेचा जाएगा ना इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये महज धागा नहीं, मासूम जानों के लिए मौत का हथियार है। तेलंगाना के खम्मम जिले में सरकारी मामलागुडम हाई स्कूल की असिस्टेंट टीचर बी गौतमी को एक निजी स्कूल की टीचर तशहीर करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। गौतमी पर यह इल्जाम है कि उन्होंने सरकारी स्कूल के फराइज को नजरअंदाज करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने निजी स्कूल में दाखिलों की हौसला अफजाई की। वाक़े के बाद जिला एजुकेशन ऑफिसर ने मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक साबिका वार्निंग्स के बावजूद टीचर ने स्कूल के औकात में रील्स बनाकर निजी स्कूल की पजीराई की, तशहीर की और अपने सरकारी फ़राइज़ को नज़रअंदाज कर रही थी। इलावाजी ये भी सामने आया है कि स्कूल के औकात में रील्स बना रही थी, जिससे तदरीसी वक्त ज़ाया हो रहा था, जिसके सबब ये इक़दाम किया गया। अपनी वीडियो में गौतमी जज्बाती हो गई और सोशल मीडिया पर होने वाले तनकीदी तबसरों के हवाले से नाज़रीन से अपील की कि इन पर तनकीद बंद करें। साथ ही उन्होंने मासूमाना गलती और रहनुमाई की कमी का हौसला देते हुए आइंदा ऐसा ना करने का वादा किया। गौतमी ने मजीद कहा कि इनकी तदरीसी मुलाजिमत रोजगार का बुनियादी जरिया है और वो किसी भी अमल से इसे खतरे में नहीं डाल सकी, और उन्होंने तलबा को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए खुसूसी क्लासेस और किताबें तक़सीम करने के अपने अज़्म का भी जिक्र किया। మా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి అన్యాయంగా నేను ఎప్పుడూ చేయనండి, అది నా యొక్క ఉద్దేశం కాదు. నాకు ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు. వాట్సాప్ నుంచి, ఇన్స్టా నుంచి, ఫేస్బుక్ నుంచి చాలా ట్రోలింగ్ చేసేస్తున్నారు. నేను ఏమన్నా 10 మందిని హత్య చేశాను, నేను 20 మందిని చంపేశానా, లేదంటే గంజాయి హెరాయిన్ ఏమైనా అమ్మానా, నాకు ఇవన్నిటితోటి సూసైడ్ చేసేయాలనిపిస్తుంది. అనొచ్చు, నన్ను అనొచ్చు, నన్ను ఎవరు హెచ్చరించలేదండి. నేను ఏ క్లాస్ రూమ్లో కూడా నేను ఎప్పుడు పిల్లల యొక్క సబ్జెక్ట్ రీల్స్ తప్ప ప్రమాణ పూర్తిగా చెప్తున్నాను. సబ్జెక్ట్ రీల్స్ ఇవే అపోజ్ చేశాను, కానీ నా విధి నిర్వహణకి వ్యతిరేకంగా నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేయలేదండి. నా గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు జాయిన్ కావాలని చెప్పి ఇంటింటికి తిరిగి నేను అడ్మిషన్స్ తీసుకొచ్చాను. మా స్కూల్లో
గవర్నమెంట్ స్కూల్లో 6th and 7th క్లాసెస్లో మీరు ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడిని అడగండి, నేను ఎప్పుడన్నా పాటలు పాడానా. వాళ్ళకి పాటలు నేర్పిస్తాను, ఆటలు నేర్పిస్తాను, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి బుక్స్ డొనేట్ చేశాను. నా ఫ్రీ టైంలో నేను వాళ్ళకి యూట్యూబ్ వీడియోస్ టీచ్ చేశాను. నేను ఇంకా ఎలా చెప్పాలండి, నోటికి ఏదొస్తే అది రాసేశారు. పాటలు చెప్పడం మానేసి రీల్ చేసిందని చెప్పి నోటికి ఏదొస్తే అది మీ న్యూస్ల కోసం. మనిషి చచ్చిపోయినా అంతే, నా అప్పుడు హ్యాపీగా ఉండండి మీరంతా. చచ్చిపోయింది కాబట్టి మీ ట్రోలింగ్కి అని 4-5 రోజుల నుంచి నీళ్లు తాగలేదండి, మీరు నమ్ముతారా? ఇప్పుడు ఇది చెయ్యొచ్చో లేదో కూడా నాకు తెలియదు. బీపీ డౌన్ అయిపోయి నాకు మైండ్ పని చేయట్లేదు. కడుపుకు తిండి పెట్టే జాబ్కి ఎవరైనా అన్యాయం చేసుకుంటారా అండి? తెలియలేదు నాకు. నా గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ నాకు తిండి పెడుతుంది. ఈ గవర్నమెంట్ వ్యవస్థను అన్యాయం చేయాలని నేను ఎప్పుడూ కోరుకోలేదండి. हैदराबाद के मल्लापुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इंस्टाग्राम पर दिए गए एक तस्वीर में महज 26,000 रुपये में कार फरोख्त करने का दावा किया गया। सस्ते दामों पर गाड़ी खरीदने की उम्मीद में बड़ी तादाद में लोग ट्रस्ट कार्स शोरूम के बाहर जमा हो गए, मगर वहां चंद पुरानी गाड़ी देखकर खरीदारों ने खुद को धोखे का शिकार महसूस किया। गुस्से में आए अफराद ने एहतजाज करते हुए गाड़ियों पर पथराव किया, जिससे कशीदा सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हुजूम को मुंतशिर किया और शोरूम इंतजामिया को पूछताछ के लिए नाचाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि डीलर रोशन को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। 5 గంటలకు వచ్చి కూపురం ఇలా 5 గంటల నుంచి ఇస్తారని చెప్పి కూపురం. ఇప్పుడు వచ్చాకి 100 మంది ఉన్నారు. ఎవరు కట్టిస్తారు అది? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? సార్ 26,000లకు. ఎక్కడి నుండి వచ్చారు మీరు? ఎక్కడి నుండి వచ్చారు? నేను వచ్చిన చార్మినార్ నుంచి వచ్చిన. నేను ఆలయ నుంచి వచ్చిన సార్. 4 రోజులు తిరగబట్టి ఆలయ నుంచి వచ్చిన. 4 రోజులు తిరగబట్టి అన్న మోత్పూర్ ఆత్మకూరు నుంచి వచ్చినాం. రేపు సాయంత్రం వచ్చినాం. ఇప్పటిదాకా 2 రోజులు ఇన్ని అన్నం కూడా లేదు, టిఫిన్ లేదు, ఏం లేదు, నీళ్లు లేవు, చాయ్ కూడా లేవు మాకు. టిఫిన్ లేదు, ఏం లేదు. नामपल्ली के रुकने असम्बली माजिद हुसैन ने आज शहर की तारीखी शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में माह रमज़ान के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इजलास में शिरकत की, जिसमें GHMC, वाटर वर्क्स और अक़लियती उमूर के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इजलास में शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के अतराफ में होने वाले इंतजामात और बेहतरी के मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इमाम व खतीब मौलाना हसन अल-हमूमी भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इंतजामात की निगरानी में अपना मशवरा दिया। इजलास में फैसला किया गया कि मस्जिद के अतराफ शेड का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा, जबकि लाखों रुपए की लागत से वाइट वॉशिंग और दीगर मेंटेनेंस के काम क़ब्ल वक्त और मुनासिब अंदाज में किए जाएंगे। वाटर वर्क्स हुक्काम को हिदायत दी गई है कि रमज़ान के तमाम 30 रोज़ के दौरान रोज़ाना पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रुकने असम्बली माजिद हुसैन ने जोर दिया कि रमज़ान से क़ब्ल तमाम मंसूबों मुकम्मल किए जाएंगे ताकि इबादत गुज़रगाहों को बिला तातुल सहूलियात मैसर हों और माह रमज़ान के दौरान सब इंतज़ामात बेहतरीन तौर पर जारी रहें। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारिस्टर उसुद्दीन अवीसी साहब के ख़ास हुक्म पर मैं, मेरे साथ हमारे आरिफ भाई कॉरपोरेटर साहब, तमाम GHMC के ज़िम्मेदार, वाटर वर्क्स के ज़िम्मेदार, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों ने आज यहाँ रॉयल मस्जिद बाग़-ए-आम की रॉयल मस्जिद में यहाँ पर हमने एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें हमारे साथ इमाम खतीब एहसन हमूमी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे हमने आने वाले माह रमज़ान की जो पूरे का इंतज़ामिया काम है उसकी पूरी रिव्यू ली। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा
पूरा काम ऑन ट्रैक है। इंशाअल्लाह ताला जो नुमाइंदगी पर इंशाअल्लाह ताला अतराफ़ रॉयल मॉस्क के अतराफ़ पूरा शेड का काम किया जाएगा। करीबन 20 लाख की लागत से GHMC की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हम ये अप्रूवल लिया है। साथ ही साथ करीबन हमने इंस्ट्रक्शंस दिए करीबन 150 साइड टेम्पररी लाइटिंग और डेकोरेटिव लाइटिंग को यहाँ पर रखने के लिए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे इलियास साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ज़ेर निगरानी इंशाल्लाह यहाँ पर पूरा वाइट वॉश का काम और दूसरे मेंटेनेंस के काम करीबन 5 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर मंजूरी हुए और उसका भी काम हम तेज़ी से शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था, उनसे हमने पूरा रिव्यू मीटिंग लिया है। एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर्स मोबाइल ट्रांसफार्मर्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे कोई भी पावर आउटेज को हैंडल करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जो दूसरे तफसीलात मेंटेनेंस काम है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे करेगा। वाटर वर्क्स के महकमे से हमने ये कहा है कि पूरे 30 के 30 दिन यहाँ पर करीबन 2000 से 2500 लोगों के पानी का इंतज़ाम भी यहाँ फौरी तौर पे करना चाहिए और ये पहली बार यहाँ पे रॉयल मॉस्क में होगा। इंशाअल्लाह उसकी हमारी नुमाइंदगी पर वो भी मंजूर होते हुए यहाँ पे आने वाले लोगों को सहूलत दी जाएगी। और सबसे बड़ा काम जो इंशाअल्लाह ताला आपको ऐलान करने में मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है, ख़ास तौर से इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की खुसूसी दिलचस्पी और उनके फॉलोअप की वजह से जो बाग़याम के शाही मस्जिद का एक बड़ा मसला था, यहाँ पर जो मुसल्ली आते थे जुम्मे के वक्त में उनको बाहर धूप में कभी नमाज़ पढ़ना पड़ता था या रमज़ान में भी कभी बाहर नमाज़ पढ़ता था और जो जगह की तंगी थी और जो ख़ास तौर से हम हर बार जो आखिर कुरान ख़त्म जब होती है, जब हमें बुलाया जा रहा था, हम यहाँ के मुसल्लियों के सामने वादा कर रहे थे कि यहाँ के उस तंगी को हम दूर करेंगे। जो यहाँ बाज़ों के एक मौलाना आज़ाद के नाम से एक यहाँ पे एक ओरिएंटल सेंटर रिसर्च सेंटर चलता था, उसको मुकम्मल तौर पर खाली कराते हुए बाग़याम की शाही मस्जिद के हवाले कर दिया गया और इंशाअल्लाह इसी रमज़ान से उसको वो स्पेस को मुसल्लियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो मुसल्ली जो लोग जो बाद में आते थे, जो धूप में नमाज़ पढ़ते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सहूलत रहेगी। एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था जिसे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हुकूमत से नुमाइंदगी पर इंशाअल्लाह ये मंजूरी दी गई कि अब एक मुकम्मल जो एक बड़ी शिकायत जो यहाँ की थी उसको पूरी तौर पर हम ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इससे यहाँ के आने वालों को मुसल्लियों को बड़ी सहूलत मिलेगी और हमें यकीन है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी उसको मेंटेन करते हुए खूबसूरती से उसको मुसल्लियों के काबिल बनाएगा। और ये रिव्यू मीटिंग्स जारी रहेंगी और ये माह रमज़ान आने से पहले हम पूरी मुकम्मल इंतज़ाम यहाँ के मुसल्लियों की सहूलत के लिए अपने ज़ेर निगरानी में मॉनिटर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले मुसल्लियों की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हम दे सकें और अपनी इबादतें अच्छी तरीके से कर सकें। शुक्रिया। हैदराबाद में एक के बाद एक आतिशबाजी के वाक़यात शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन गए हैं, जहां नामपल्ली के बाद विजयनगर कॉलोनी में भी एक मैकेनिक शॉप में रात तकरीबन 2 बजे अचानक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में शॉप में खड़ी 3 कारें मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त शॉप में कोई मौजूद न था, जिससे जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां, पुलिस और हंगामी खिदमात की टीमें मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे करीबी इमारतों को नुकसान से बचाया गया। नामपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आग लगने की वजूहात जानने का आगाज कर दिया, जबकि शहर में मुसलसल पेश आने वाले ऐसे वाक़यात के बायस मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया है। हैदराबाद में एलबी नगर पुलिस ने गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान चैतन्यपुरी, नागोल और हयात नगर के इलाकों में पेश आने वाले बैनुल सूबाई स्नैचिंग के सिलसिलेवार केसेस में अहम पेशरफ्त करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी एलबी नगर अनुराधा के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में नई दिल्ली के अक्षय कुमार शर्मा और हरियाणा के रोहित शामिल हैं, जिन पर पहले से मुतअद्दिद रियासतों में मुकदमा दर्ज है। अक्षय कुमार शर्मा के खिलाफ नई दिल्ली में 21 और रोहित के खिलाफ नई दिल्ली व महाराष्ट्र में 13 केसेस दर्ज हैं, जबकि दोनों पर हैदराबाद और मरकज़गिरी कमिश्नरेट में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 9 केसेस दर्ज थे। गिरफ्तार अफराद से 5.2 तोला सोने के जेवरात और मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। अनुराधा ने बताया कि मुल्जिमान को नई दिल्ली मुंतकिल करके रिमांड पर ले जाया गया और दोबारा कस्टडी में लेकर तफसीली तफ्तीश की जाएगी।
सिकंदराबाद जोन टास्क फोर्स और लालागुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में वेस्ट मारेटपल्ली के अरिहंत सिदन अपार्टमेंट में पेश आने वाली डकैती के मामले को हल करते हुए 3 रुकनी डकैती गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने एक खातून को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया और तकरीबन 9 तोले सोने के जेवरात लूट लिए थे। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मरकजी मुलजिम पहले इसी अपार्टमेंट में वॉचमैन की हैसियत से काम कर चुका था और रिहायशियों की आमदोरफ्त से बखूबी वाकिफ था, जिसका फायदा उठाकर इसने अपने साथियों के साथ वारदात की मंसूबाबंदी की। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से तकरीबन 28.8 ग्राम सोना, 2 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी मजमूई मालियत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तब मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि पुलिस हुक्काम ने इस कामयाब ऑपरेशन को मुनज़्ज़म टीम वर्क और खुफिया मालूमात का नतीजा करार दिया। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोग हैं। ये एक लालागुड़ा में 21 को जो केस दर्ज हुआ, क्राइम नंबर 17/2026 अंडर सेक्शन 309 BNS, उसमें कुछ क्लूज मिला। सो इमीडिएटली वहाँ पर हमारा जोनल टीम और टास्क फोर्स टीम वहाँ पर पहुँचा और 3 लोगों को वहाँ पर कस्टडी में लिया। ये 3 लोगों का नाम गुरपागरी महेश, चिन्ना कोटला पवन कुमार, गिज्जू सुरेंद्र, ये तीनों पुट्टापर्ती से है। वो वहाँ पर लेबरर काम करते हैं। इसमें महेश जो है 2021 से 2024 जहाँ पर ये रॉबरी हुआ, वहाँ पर वॉचमैन काम करता है। अरिहंत साधना अपार्टमेंट में वॉचमैन काम करता था। सो जब वो वापस अपने गांव गए तो वहाँ पर दूसरों को भी बोला कि यहाँ पर हम रॉबरी कर सकते हैं। तो वो प्लान करके 21 को हैदराबाद को आए और 21 को 3rd फ्लोर में जो रहते हैं वहाँ पर जाके एक बूढ़ा में सो वहाँ पर जाके रॉबरी कमिट किया। उसके बाद हमने और टास्क फोर्स ने जॉइंट टीम्स बनाया, 5 टीम्स बना के जो क्लूज वहाँ पर मिला, टेक्निकल एविडेंस से मिला, आज हमें ब्रेक थ्रू मिला। आज हमें इनसे 2 मोबाइल फोन और 28.8 ग्राम्स गोल्ड चेन, गोल्ड फिंगर रिंग और गोल्ड बैंगल भी मिला। कुल मिला के 4.5 लाख वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है। अभी इनको रिमांड करके नेक्स्ट हम पुलिस कस्टडी लेके बाकी जो है गोल्ड वो भी वापस लेकर आएंगे। थैंक यू। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन का शेड्यूल हुआ जारी। 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और 16 बल्दियात में 11 फरवरी को वोटिंग, 13 फरवरी को वोटों की गिनती और इसी दिन नताइज का ऐलान। नामपल्ली में लगी शदीद आतिशबाजी के दौरान फायर फाइटिंग के लिए जदीद रोबोट का मौसर इस्तेमाल, वायरलेस कंट्रोल और लाइव वीडियो के जरिए रेस्क्यू टीमों को फौरी मालूमात फराहम। हैदराबाद की मछली वाली इमारत दुनिया की अजीब व गरीब इमारतों में शामिल। मेमोरी आर्किटेक्चर के आलमी मिसाल बनी फिश बिल्डिंग। दूर से देखो तो मछली, करीब से देखो तो इंजीनियरिंग का कमाल। फोन टैपिंग केस में एसआईटी ने बीआरएस जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार को जारी की नोटिस। बीआरएस का सियासी इंतखाम का इल्जाम, कविता ने कहा संतोष राव ही रेवंत रेड्डी का मखबर। नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन का शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में रमजान इंतजामात का जायजा। मस्जिद के अतराफ शेड, वाइट वॉशिंग व मेंटेनेंस का काम रमजान से कबल होंगे मुकम्मल। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून।
अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुजदलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।